Google, Amazon, and Snap are among the companies continuing to downsize. Software engineers have lately been having a troublesome time looking for a job and finding Delhi a with good- election is like a really big deal right now. उसके बाद से no one has actually changed their jobs. If those people are getting laid off, we as freshers, जब we enter the picture, we are like a 17-year-old guy or 18-year-old guy. Now, do you think should he pursue computer science? you don't. उनको चाहिए jack of all trades. ठीक है. They need LinkedIn पे apply कर रहा है तू. तो how is fitness is helping you and how is यार keep it रिश्तेदार पूछेंगे of course. आजू बाजू वाले पूछेंगे कि यार क्या चल रहा है जॉब सर्च का, क्या चल रहा है, तेरा क्या है, हो गया, कब होने वाला है, अरे यार अभी भी नहीं हुआ, भाई आंख बंद करोगे तब भी दिखोगे, कान बंद करोगे तब भी सुनाई दोगे, simple as that. आज जो Welcome everybody for another podcast today. If you have watched my previous video, you already know that I am still looking for a job. It's on the Instagram Reels, it's on the LinkedIn feed, it's in the TV and the Google search. Unemployment and the job search being a little tough for all the degrees, especially computer science. Software engineers have lately been having a troublesome time looking for a job and finding a good job. So today's topic is going to be circling around that topic. We'll not be going deep into the ideology of how to get a job. It's not that podcast, but we'll be talking while you're looking for a job, how to cope up with it and how to keep your motivation up. कोई भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, I'll like to give you one disclaimer, that is we are still looking for a job. So हम कोई भी चीज बता रहे हैं, हम कोई भी चीज बता रहे हैं, it is not definitive. It is something that we are trying to get hired because something that has not worked for us yet. तो अगर किसी का वर्क हो चुका है तो maybe they can give you a better idea कि कैसे हायर होना है. हम वो नहीं बता रहे, हम ये बता रहे कि what are we doing to get hired. if you are in a similar situation, if you are in the job market looking for a software developer role or similar roles, you would relate. And that's the guest today, and I'll let you introduce yourself. Hi everyone, my name is Satvik. I'm a computer science graduate from University at Albany. I just got my master's. It's been 6 months since we both graduated actually. साथ में graduate हुए. But yeah, it's been a journey, and I am an international student. मैं दिल्ली से हूँ. तो दिल्ली gang अगर कोई है दिल्ली से लोग, if anyone's watching this, Like my video. like his video, or yes, nice to be here. Absolutely, yeah. Thanks for coming. Thanks for joining us. So before we talk anything about how to cope up with this whole emotional journey that we're having, you agree it or not, when you are putting in a lot of effort and then you get very minimal or like completely no returns, it is a time where you are a little disappointed, you are demotivated. So before we jump into that, so everybody who have no idea about what are we talking, let us introduce them to the topic of why computer science field is facing this according to us. So you can start it. बहुत सारे reasons हैं यार. Like there's so many reasons to think of, but हम अगर उस situation में हैं, of course these things come to our mind कि क्यों हो रहा है. So अभी mind it goes into like every corner of the room and we're trying to like find reasons कि why it may be happening. So I have a couple of reasons. तेरे पास कुछ theories होंगी I guess, but some of like the things that I've heard from the market, like लोगों से सुन के, or like people who are working, or जो लोग अभी I don't know, जो लोग अभी hiring कर रहे हैं, right? So the things that I've like gotten to know are कि in the past 3 years, there's been a major shift. In 2021, there was like in 2022 actually, there was like a big influx of hiring, ठीक है? And it was just like after COVID, like market was booming up again. And a lot of people were hired. So many people I know, जो अभी current job में they're working in, they all started working like in 2022, ठीक है?
उसके बाद से no one has actually changed their jobs. First thing that. Why? We'll come to that कि like क्यों ऐसा हुआ. But वहाँ पे it started, and then last year, mid onwards, layoffs started happening. 2023. I think that's a big reason. तो ये connect होते हैं आपस में because they hired so much कि it was probably not needed at the moment, or companies like हम mang companies की बात करें, Yes. right? Meta, Amazon, they hire in bulk, and eventually they feel the need to like lay off, and I think that's what's happening. So many people with experience, like जिनका 2 या 4 या 5 या 6 साल का experience है, which is still not a lot, उन लोगों को, if those people are getting laid off, we as freshers, जब we enter the picture, we are like, compared to them, we are completely clueless. We don't know, right? We don't know anything. So in their perspective, it's probably like easier for them to hire someone who has like 4 to 6 years experience. And वो लोग are ready to probably work and join because Layer. layoffs. So it's this whole circle, and I personally like really believe in this. तू बता तेरे को क्या लगता है इसके बारे में? No, that is when you said the whole part कि 3, 4 or 6 years के लोग अभी ready है market में. So I have a little different opinion on this whole thing. It is because क्या होता है कि when you look at the whole Amazon hiring part for a long period of time, or for any company like top mang companies का hiring part, it always had this bulk hiring or mass hiring, they say. But eventually the companies or everybody in the market have realized that there are too many people to do the same job. So at some point of the history, maybe 5, 6 or 7 years down, like running the clock back, we had computer science as one of tough degrees. Like not everybody were able to crack it open. Not everybody were able to understand design patterns, data structures, developing a website, designing the websites and stuff. But eventually, अब ऐसा हो गया है कि there are a lot of them. Outnumber हो गया. Even now, if you go into a class in our own university, which is not like a very famous university, yet we see at least 150 people in Jackson's computer organization class. इसका मतलब, on a normal basis, at some point of time, there will be 200 grads with us. Or that we know. From masters, That we know. not bachelor. Yes, that we know. हमें पता है अब PhD भी ग्रेजुएट होंगे. अब ये एक यूनिवर्सिटी है, ऐसे कितने सारे यूनिवर्सिटीज में है. सो नाउ दैट देयर आर टू मेनी ऑफ देम होल्डिंग द सेम डिग्री, अब इस पे लोग कह सकते हैं कि नॉट एवरीबडी हैव द सेम स्किल. So there comes the issue that the way the job filtering happens, I can write anything in my resume and I can apply for a company. I will only get caught in the interview. So if I'm applying something and you are applying to a position, and let's say if there exist 10,000 people applying to a university, 10,000 people can apply to a company, 10,000 people can put in something that might be almost similar to all of them. So now who will get picked? So the point is there are too many of them. So now what's happening is I can't actually blame. by company को भी blame actually नहीं कर सकते. Of course not, यार. लोगों को ऐसा लगता है कि यार हायरिंग नहीं कर रहे यार, इससे पहले तो हमसे लाइक अभी मुझे बहुत आती है. आई एम वेरी प्रोफिशिएंट इन डेवलपमेंट. मैंने ऐसे लोगों को देखा हायर होते हुए जो इतना प्रोफिशिएंट नहीं है. बट अभी एट दैट टाइम ऑफ द क्लॉक, it was actually required for the companies to hire them. कि भाई ये अगर 10% का काम भी कर देगा ना, तो the project की progress 10% बढ़ जाएगा, ऐसे सोचते थे. Now ऐसा Proactiveness भी आती है उसमें. Now ऐसा हो गया है कि they want somebody who knows what they're doing. They don't want to hire anybody. Now the things they took a little turn. Now the companies are a bit specific. The recruiter managers are a bit specific. ताकि वो ऐसे एक प्रॉपर बंदे को ले कि इस पे अगर हम $1 जो खर्च रहे वो वर्थ इट है. दैट इज द मेजर शिफ्ट इन द मार्केट. उसके अलावा एब्सोल्युटली इफ देयर अगर एक पाइप है, एक पाइप से पानी आ रही है, वो इतना रेडियस उतना डायमीटर का ही आएगा ना जितना पाइप है.
and now the intake of water is too much. At some point pipe फटेगा. That's the point. एक point पे influx हुआ, अब वो deflux कर रहे हैं, ठीक है? So that is not the biggest deal. अभी वो हुआ, so I guess we'll go back to that state. और अभी जैसा बहुत लोग speculate कर रहे हैं, मैं सिर्फ US में job market की बात करें, not just computer science. This thing is just जो मैं भी बोलने वाला, this is like probably in general. After elections and New Year start होगा 2025, maybe वो एक in itself is like a new beginning kind of like पहली बात election is like a really big deal right now. So talking about that, giving a bit context. So we are shooting this in December. So in the January, we'll be having a presidential change in the United States. Trump will be taking the power. Congrats to him. So continue with what you're going to be making as. I think like that's gonna make a change in the job market, right? As a lot of people are expecting. ठीक है? So the first point was key influx, deflux, and the second thing I would say is जो तूने बोली, I would like to add on to that and build on that key specific skill set required है, right? They just don't want anyone, they don't want a herd कि भाई बस ले आए and just like, you know, knowledge hand off करने में you spend so much resources and so much money, and then maybe the outcome that you get is not as much like as you're putting in. ठीक है? Actually, अब ना ये if somebody who is actually a developer, yeah, aspiring developer who's going to be graduating, अगर if you ask my opinion of mine कि भाई अब तो क्या बात है, तो I'll tell you something. एक time था, I had friends who used to who got into Amazon and Facebook and Apple as well with a tech stack that has Java, a tech stack that has Java and Python as programming languages, and a few couple of college projects that they did. Not anything outside this. Academic project. Exactly. Now they want to see few projects of your own that has business value first. Second, React, Next.js, TypeScript, these are playing a big key role outside. Java is still alive. A lot of people are actually making statements कि Java अब कौन करता है. There are people who does Java. Python has having a very big swing because of AI and machine learning programs. So make sure your tech stack, you're not limiting yourself to something very minimal. अब तुम्हारे अगर कोई क्लास में 100 बंदे हैं और 100 बंदों को एक लैंग्वेज आती है ना, तो try to learn something on top of it. So you're now the only person who knows the language, or you're in the top 1% of your own class. इससे ज़्यादा don't run your thoughts because you know you will not find answers. किसी पे बहुत डीप जाओगे तो 0 ही मिलेगी. Like mastery नहीं चाहिए उनको अभी, ठीक है? एक चीज़ में you don't, उनको चाहिए jack of all trades, ठीक है? They need कि अगर नहीं भी आता तो सीख लो, सीखने की capability होनी चाहिए, like learn quick, ठीक है? Learn quick, build fast, break fast, move fast, ठीक है? ये चीज़ we totally get it, and I feel like हमने इस चीज़ के ऊपर बहुत एक्सप्लोर किया है. अब Next.js जो तूने सारे all these technologies, modern frameworks, Next.js, Typeform, whatever you mentioned, like all these new players, इन चीज़ों में हमने इतना एक्सप्लोर किया और अपना स्टेप इन किया है कि we know कि कितना एक्सप्लोर करने को है, और even in the job market हमने वो चेंज देखा है. LinkedIn पे जाके you look for like you go and see the job descriptions, वो चेंज होती हुई देखी है with time. A lot of people are now asking for these modern frameworks, और वो इतने मॉडर्न भी नहीं है कि लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि वो अभी 1-2 साल पहले आए हैं, लाइक 10 साल हो गए हैं. दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड मॉडर्न. जावा इज लाइक years, like decades old, right? उसका it's not कि it's dead, of course not, but legacy मॉडल्स को चलाने के लिए जो कि कितने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, यू नीड जावा एंड ऑल दैट. आई एम श्योर अमेजॉन ऐसा नहीं बोलेगी कि भाई Next.js पे लेट्स जस्ट शिफ्ट टू लाइक समथिंग. इतना बड़ा स्ट्रक्चर उनके लिए करना, इट्स प्रोबब्ली मोर like of a loss than a, I don't know, जो भी उनको फायदा हो. That is. But the point is कि ऐसी बहुत कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी, जहाँ पे उन्हें ये चाहिए कि तुम्हें फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड, सब डेवऑप्स, यू शुड नो एवरीथिंग, ठीक है? क्योंकि उनको ये चाहिए. मैं कितने अभी आई वेंट टू दिस नेटवर्किंग इवेंट, ठीक है? इट्स कॉल्ड बेव्स फॉर डेव्स, ठीक है? ये क्या होता है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर
it's like a beverages for developers. So it's like थोड़ी सी माइक पास pass पर this. So like it was basically कि न्यूयॉर्क सिटी में जितने भी builders like software developers or founders, so like for tech startups, so many tech startups in New York City, right? So उसके बहुत सारे लोग आए थे. अब I don't know, बहुत लोगों ने यहाँ पे सुना होगा about 222. It's this app that like that's for like big city loneliness. It's like match करती है लोगों को. It matches like people for experience. Like कि दो लोगों को match किया. It's like for making friends basically. Not exactly dating, but then दोस्त बनाने के लिए. The first person that I went in and talked to was this guy who's the CEO of that company. मुझे पता नहीं था. ओके And this guy is like हमारी कंपनी में really interesting conversation. मैंने उससे पूछा कि like how many people कि तुम्हारी कंपनी में कितने लोग हैं? उसने बोला हमारी कंपनी में 7 लोग हैं. ठीक है, 3 साल हो गए कंपनी को. उसने ड्रॉप आउट किया, उसने कंपनी स्टार्ट करी, 7 लोग हैं. मैंने बोला कहता वी मे बी हायरिंग लाइक वी मे स्टार्ट हायरिंग सून. सो मैंने बोला लाइक अभी 3 साल हुए हैं, you're just 7 people, like is there a reason you hire so slow? उसने बोला we don't hire fast because you just need one like bad person. No, you just need one bad person to just, you know, infect the whole pool. Like you just need one person and that can just ruin the whole batch. बिल्कुल फेयर है in some sense if you agree. Like I mean, it's not just in a startup. You know, even in अगर तुम एक normal team project की भी बात कर रहे हो ना, you don't need too many. It's not that 10 good developers make good product. It's just 10 developers. There is no bad developer in there. That's the difference. उनको चाहिए कि एक सेंसिबल बंदा है, लॉजिकल बंदा है, अगर लर्न करना है कुछ लर्न कर सकते हो, नखरे नहीं है कुछ, एंड दैट्स प्रोबब्ली ऑल दे वांट, लाइक एक गुड वर्क एथिक. सो मैंने वहाँ पे बहुत लोगों से बात करी, एंड दिस इज लाइक व्हाट आई गॉट टू नो. इट कम्स डाउन बैक डाउन टू द सेम थिंग कि अपस्किल. They need the right person. हमने आई कैन नेम लाइक 5 न्यू फ्रेमवर्क जो हमने शायद अभी कुछ पिछले 1 साल में बढ़ते हुए देखे हैं. तो Next.js बोला तूने, Vue.js, Nuxt जो अब बहुत चलने लग गया है, right? Next is next for React and next for Vue. Yeah, so Nuxt is to Vue और Next is to React, Yeah. right? So basically ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं and we are trying our best to like keep up with that, right? On that note, I'll drop on the both of our portfolios in the description. It's like a website portfolio where we list all our projects, building like software development related. मेरा तो पूरी जिंदगी उसमें है भाई. Yeah, so सब दिखेगा तुम्हें वहाँ पे. So do check out, and also one more news that I am going to put out and like through this podcast is my blogs might be coming soon, somewhere around the corner. So wait for that. It has tech and fitness both as my blogs, and somewhere they'll be coming up soon. So stay tuned to my portfolio. So bhai, that is for sure. Yeah, like you need to upskill lately. You can't be like mediocre नहीं बन सकते हम लोग. तो अभी देख, this is the reason. तो let's not go much deep into this because it has too many faces. अब हमारी जो expertise है, we are into full stack development, तो हम इस पे बात कर रहे हैं. हो सकता है कोई data analytics का Yeah, and maybe they haven't heard of these tools, पर उनको भी same problems हो रही हैं. अपनी tools कुछ होंगे जो relately. So The whole point was कि upskill, right? तुम्हें एक चीज मान के चलो, अगर आज की तारीख में if on a given day I'll tell you a new in your own field, I'll tell you a new language or a framework and you can't cope up with it in one good project. एक प्रोजेक्ट खत्म करने से पहले आप उसमें अच्छे नहीं बन पा रहे हो, तो you have to really work on your own skills. I see this like differently. मुझे ऐसा लगता है कि it's not even about the technology at this point. ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा move past करें, like if we talk about it, मुझे लगता है it's more about कि वो एक mindset build करना कि तुम कुछ भी सीख सकते हो, you know? Basically वही. Any language that you want to work with. I think अगर हम एक experience share करें, तेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, पिछले 6 महीनों में after graduation, we have had like कितनी opportunities where companies के साथ जहाँ पे they give us projects. So this is about like for hiring. आजकल it's not like कि तुमने Amazon में apply किया, they send you an OA and तुमने वो करा and you know they give you an interview. It's more like कि it's more of the startups that are reaching out. And वो startups reach out करके they are like, oh, we have an assessment for you. Build this like, for example, build this whole full stack web app. ठीक है?
we need you to just make anything that you want, or maybe they have specific requirements कि ये बनाओ. किसी को UI UX में चाहिए तो उनको पूरी apps चाहिए बना के, और उसमें they have specific requirements. किसी को चाहिए React पे काम करो, किसी को चाहिए Next में काम करो, किसी को चाहिए Python में पूरा, और backend तुम Django का करो, front end React करो. तो there's so, तुझे पता है कौन से की बात? There's so many भाई, मतलब तो So I would just tell you one thing कि ultimately तुम एक ही चीज पे चलो कि make sure first of all yes mindset absolutely कि तुम्हें अगर सीखना पड़े you are ready, it shouldn't be a pain for you. अगर तुम्हें पेन लग रहा है, I guess यार, अगर तुम अभी सोच रहे हो कि should I do this degree or not, if you feel that it's a pain for you at any point of your life, it's better not doing it. क्योंकि ये eventually क्या हो रहा है, there was a podcast I have heard recently by, I don't know whose podcast it is, but I have seen it. It's a statement by singer Badshah. Okay. अगर कहीं पे सिर्फ पैशनेट लोग काम करते हैं ना, उस फील्ड में मत घुसना. ऐसे ही पैसे कमाना है जस्ट बिकॉज वहाँ पैसा है. और वहाँ पे पहले नहीं था वो कंप्यूटर साइंस. यस, फॉर कंप्यूटर साइंस पहले नहीं था. अब जहाँ सिर्फ पैशनेट लोग घुस के काम कर सकते हैं, टिक सकते हैं, वहाँ मत जाना सिर्फ पैसों के. यार डेवलपर्स पैसा कमा पा रहे हैं. अरे सर आप डेवलपर मुंडीर. साइबर मंडीर. बट नहीं, आई टोटली एग्री भाई कि लाइक वो माइंडसेट. अभी मैं लिंक्डइन खोलता हूँ ना, बहुत लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, इट्स लाइक जावा डेवलपर. हाँ, What does that even mean? Like in this age, in 2024, what does a Java developer mean? What are you trying to convey? कि तुम देखो अपने आप को जितना ओपन रख सकते हो और जितना अडेप्टेबिलिटी. आई वुड लाइक मेक, अगर तुम नोट्स बना सकते हो ना, तो ये लिख लेना कोई एप्पल की नोट्स पे कि अडेप्टेबिलिटी. तुम जब तक अडेप्टेबल नहीं बन रहे हो इस चीज में, तब तक तुम किसी काम के बनने नहीं वाले हो. So तीसरा रीजन, उनको अडेप्टेबल बनना चाहिए. एंड एंडलेस रीजन था. माय पॉइंट इज कि इसके एंडलेस रीजन. हमने तो सम ऑफ द होल सिनेरियो 3 पॉइंट्स में आपको टेक अवेज बताऊंगा इस सेक्शन के. पहली बात, यहाँ का जो इन्फ्लक्स आया हुआ था पहले, वो अब डिफ्लक्स पे जा रहा है. कंपनीज आर नॉट एज एक्टिवली एज दैट दे यूज्ड टू हायर इनिशियली लाइक फ्यू इयर्स बैक. दूसरा, एक काम करने के लिए बहुत लोग हैं. लॉट ऑफ पीपल क्लेम a single thing as their expertise. So now companies are looking for people who actually can do it the best, not even better, best. तीसरा, as a developer, अब कंपनी के ऊपर ब्लेम डाल के हम कहीं जाने नहीं वाले. तो what we can do is being adaptable. जो भी सीख रहे हो सही से सीखे, अच्छे से सीखे, and we being adaptable enough for anything कि ये लैंग्वेज है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं डेवलप कर सकता हूँ, no matter what we're doing. That is something that you can take away from this section and adapt them in your own lifestyle, and maybe things will be better for you eventually. So by on that note, देखो अब हमें reasons तो पता है कि ये चीजें बाहर चल रहा है थोड़ी सी. But do you think if let's say a 17-year-old guy or 18-year-old guy, or whether it's in India, USA, Germany, Italy, कहीं पे भी हो, now do you think should he pursue computer science? तेरे को क्या लगता है? Why do you suggest that they should, or why do you say no they shouldn't? I feel like इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीम चल रहा है अभी इंस्टाग्राम पे. CS डेवलपर्स, डेवलपर चौक. भैया जावास्क्रिप्ट UI UX भी चाहिए. हो जाएगा भैया. हो जाएगा ना. तो ये मीम चल रहे हैं कि लाइक ईयर्स पहले इट वाज कि सालों पहले ये होता था कि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा मेजर क्या है, कंप्यूटर साइंस बोल रहे हो, तो दे आर लाइक यू आर प्रोबब्ली सो स्मार्ट, तुम कितने पैसे बनाने वाले हो आफ्टर कॉलेज एंड स्टफ, राइट? इट्स नॉट द केस एनीमोर. It is not. राइट? सो अब ये सब चीज़ें कोई 17-18 साल का बंदा जो कॉलेज में जाएगा, अब they will probably like this will probably scare them away, but it shouldn't be the case according to me. I feel like that shouldn't be the case क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो भी पैसा बनाना बंद कर दिया है. लाइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? कितने लोग कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और किस किस लेवल पे कमा रहे हैं, राइट? सो नेवर द केस. आई फील लाइक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ, आई नो दिस probably comes off as like being ignorant but not doing enough. I feel like मैं अपने आप को भी ये बोलूँगा at this point. I feel like कुछ तो है जो हम नहीं कर रहे यार. कुछ तो people are, ऐसा तो नहीं है hiring freeze, done, dead.
ऑफ कोर्स देयर चीज़ें जो हम नहीं कर रहे, बट वी आर ट्राइंग आवर मोस्ट, राइट? वी आर डूइंग थिंग्स जो हमें लगता है कि भाई दिस इज दिस विल हेल्प, वी आर डूइंग इट. बट I feel like as a 17 or 18-year-old, you can take a step back and you can probably get into it better. मुझे लगता है कि तुम उस फील्ड में और बेटर तरीके से घुस सकते हो कि so that now you know कि it's not like just being a Java developer is not gonna cut it. So you can probably build a mindset कि that okay, I have to be different. It won't work the same way. So I guess that's one reason to get into it. And एक reason के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि it's very important to be passionate. अब at least I feel like computer science एक ऐसी field है, पहले it was like not fueled by passion. It was not um of course it was for people like Mark Zuckerberg जैसे लोगों की बात करें, it was fueled by passion. But I'm saying उन लोगों ने बड़ा नाम किया है. But even if passion नहीं है, you would make a decent living 10 years ago, 20 years ago, 15 years ago. If you knew computer science, if you knew how to code, you would make a decent living. That's not the case anymore. ठीक है? I feel like अब there needs to be passion because there needs to be constant learning, like ऐसा urge to learn. ठीक है? That's what I feel अब इस point पे कि वो ज़रूरत है उस passion की, जैसा तूने बोला वो जो बादशाह वाली बात, whatever, right? ये एक reason है मुझे लगता है कि it's probably better for those people जो अब इसके बाद आ रहे हैं. Because अगर they say कि AI is a field जो grow कर रही है अभी, right? They say कि उस चीज़ में करो. वी सी आर सेल्फ हम अप्लाई करते हैं, वी सी कितनी सारी पोस्ट हैं, दे आर फॉर लाइक मशीन लर्निंग इंजीनियर. अब वो चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी पोस्टिंग्स वी सी डेली एंड दैट्स इंक्रीजिंग. तो प्रॉब्ली जो लोग अब कंप्यूटर साइंस में अगर मास्टर्स करना चाह रहे हैं या उसको अपना मेजर लेना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर वो स्पेशलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स बेटर. I mean, out and out, I would say one thing कि stop coming here just because it makes money. People used to do it. क्या टू यूएस? Studying computer science because I've seen people like even my friends कि यार ये करेंगे ना कहीं से तो एक नौकरी लग जाएगी, जैसे नौकरी लग जाएगा पैसा मिलेंगे, बाकी सारे मेजर से ये मेजर में आई कैन मेक मोर मनी. ये श्योर ऐसा भी नहीं है कि 100% ही नहीं है, अभी भी होगा ऐसा. ऐसा नहीं, बट मीडियोकर कंपनीज या मीडियोकर जनरल इट विल हैपन. yes, but the point is, I'll tell you something. Now the world is moving towards entrepreneurship a lot. That shift will cause the ideology difference in even in hiring. Because अगर let's say कल अपन दोनों ने एक कंपनी खोला, we'll hire people with the same kind of mentality because we know, we have seen friends in our own circle कि भाई यार हो जाएगा. Like we have worked with people who we wouldn't like be interested in working with. Exactly. So that's where the ideology is coming. So don't really get into a field just because it makes money. Get into it because you like it. You don't get tired doing that. You're not you're not burning out just because कि भाई यार अब एक असाइनमेंट देख के ही तुम्हारी ऐसा फट के चार हो जा रही है कि भाई क्या करूँ इसमें मैं. So it's better if you avoid it. But if you enjoy, actually you love, you are fascinated by the fact कि भाई एक वेबसाइट ऐसा बनता है, ये एक ऐसी मैं एक चीज़ को ऑटोमेट कर सकता हूँ, दिस इज फॉर यू. ये वो अगर आज नौकरी मिल रही है किसी को, नहीं मिल रही है किसी को, कुछ भी हो रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ना ना, ये किसी ने बताया कि एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है. ये एक सच है, एक बिल्कुल सच है कि एक बार तुम एक इंजीनियरिंग इज ना एक वो लाइफस्टाइल है इंसान का. तो अगर तुम कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो ना, वो इंजीनियरिंग की फैक्ट, इवेंचुअली तुम ये पढ़ रहे हो कि इसको आप अपनी लाइफ में कैसे डाल सकते हो. और एक बार तुम्हें वो आ जाए ना, उसके बाद तुम हर जगह ना तुम्हारी दिमाग उतनी ही लॉजिकल काम करेगी एंड दैट विल हेल्प यू आउट एनीवे. तुम अपनी कंपनी खोल लो यार, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है. हो सकता है तुम्हारे पास पढ़ते पढ़ते इतनी एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आ जाए विच नोबडी हैव एवर थॉट ऑफ. यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम दैट पीपल हैव थॉट कि यार ये प्रॉब्लम है पर पता नहीं कैसे सॉल्व करे. सो यू कैन बी दैट पर्सन एज वेल. सो यू नेवर नो. सो थिंक कि क्या पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से. पार्ट नंबर 2, इफ़ यू आर पिकिंग अप द आइडियोलॉजी कि यार मुझे कंप्यूटर साइंस ही आती है, मुझे वही पढ़नी है, जो मैंने इसी वजह से पिक किया. आई एम श्योर अबाउट इट. एवर सिंस डे वन व्हेन आई लुक्ड एट द ऑप्शंस आई हैड, मुझे एक जो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो मेरी दिमाग चलती थी एंड हाउ इंटरेस्टेड आई एम, हाउ ड्रिवन आई वाज,
किसी और में नहीं था, मैं मेरे को नहीं आती थी, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई पिक्ड इट अप. सो आई वुड से आज भी वही करो, बट as what we didn't do and what we are doing right now that somebody can do is projects. Shed some light on it. My point was कि जो projects है ना, मेरे को जो opportunities मिली हैं, I've gotten them because of my projects. Like जितनी भी मिली है in this dead market, I've gotten them because of my projects. मेरे को if you go the portfolio that he mentions, तुम इस वीडियो के साथ साथ ही खोल के you can just check, right? Check it out. There's like 10 to like 8 to 10 listed projects. GitHub पे शायद तुम्हें उससे ज़्यादा मिलेंगे. GitHub भी mention कर दियो, right? I'll just put out the. So उस पे शायद तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे. जो मेरे डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स हैं और आई वर्कड अक्रॉस द स्टैक, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं आई गेस वो ही मैंने दिखा के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर मुझे मिली है तो उसकी वजह से मिली है. तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज लोगों को दिखता है कि तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास प्रोएक्टिवनेस है और तुम्हारे पास एक डिज़ायर है कि तुम्हें कुछ बनाना है, ठीक है. और तुम यू नॉट स्केयर्ड और यू नॉट जस्ट कि भाई जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना बस वो पढ़ लिया अकेडमिक प्रोजेक्ट्स. बहुत जगह तो अकेडमिक प्रोजेक्ट काउंट भी नहीं करते हैं. हाँ, अब तो बंद कर दिया है. यस, दे डोंट काउंट. लाइक कि तुमने पर्सनली कुछ खुद बिल्ड किया है फॉर योरसेल्फ और तुम्हें कुछ बनाने का मन था और तुमने बनाया हो. सो आई फील लाइक आई कीप डूइंग दैट. मुझे बहुत मज़ा आता है. आई लव डेवलपमेंट. और अब ऑफ टॉपिक, बट मुझे आजकल UI UX में बहुत मज़ा आने लगा है. I mean, I can vouch for it. मैंने लेटली देखने लगा है कि भाई कभी डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ तो जवाब ऐसा ठीक से बहुत बहुत बढ़िया जवाब आती है. सो I'll tell you something that I am doing right now. तो आपको इसको पता है वैसे कि मैं जैसे पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया ना, सो पीपल ऑलवेज टेल मी कि भाई ये करते वक्त भी तू कैसा, हाउ आर यू बीइंग क्लोज टू योर टेक स्टफ while doing the like podcasting. I am building an automation website for my own podcast. जिसमें I am having like all my guests. I'm getting reviews for them. I have my own mailing management, email management in my own website. And then we have statistics of our database कि trends क्या है इस like हम किस genre में ज़्यादा कर रहे हैं, हम कितने guests को लाए हैं, हमारे पास कितने unpublished episodes है, etc stuff. So I'm building a whole website on this. मैंने वेबसाइट नहीं देखी है, बट ही कीप शेयरिंग लाइक द आइडियाज एंड इनोवेशंस एंड we discuss about that stuff a lot, and it's really good. Like I am waiting to launch करेगा. Yeah, I mean, it's kind of almost done. अभी तो बीटा में चल रही है वो, थोड़ी internally हम use कर रहे हैं अभी. Once it's completely like क्योंकि what happens is हमने 3 podcast single guest के साथ shoot किया, and we built the whole like I built the whole website on that basis, and then last podcast was with 4 of them. So then I had to change the code. So we are working on that part, and once. Yeah. So on that note, that's something that I'm doing, and I'm also like we both will be soon working on few collaborative projects that will be coming out for users. So stay tuned for that also. And I are like that is something that I always support कि projects बनाना जरूरी है, because क्या होता है कि जब तुम्हारे पास कोई experience नहीं है, one thing that will make a big value in your resume is your projects. कि यार इसको कुछ तो हम अगर लेट्स से मैं कहीं पे जाके मैं बोलूँ कि भाई मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ एंड माई वेस्ट इज लाइक 50 inches, डू यू थिंक यू विल ट्रस्ट मी? सो आई हैव टू शो यू माई वर्क कि लुक एट माई बॉडी. इफ आई कैन डू इट टू माई सेल्फ, आई कैन टीच यू मे बी. सो इट्स द सेम थिंग कि तुम एक प्रूफ दिखाना चाहते हो बाहर जाके कि यार देखो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है एंड ये प्रूफ है कि मुझे ये लैंग्वेज आती है. आई कैन कोड इन दिस लैंग्वेज. आई एम गुड एट. जितनी वो वैरायटी बढ़ेगी तुम्हारी वेबसाइट पे जहाँ पे तुम सो लेटली मैंने अपने पोर्टफोलियो में ही यू गो एंड यू सी वो चिप्स जो हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक कैटेगरीज स्पेसिफाइड, राइट. सो इट्स अबाउट लाइटिंग. सो बेसिकली इट वाज अबाउट कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है एक प्रोजेक्ट के अंदर. सो आई फेल्ट द नीड लेटली कि मैं वो बताऊं कि भाई इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी. सो इट्स बेसिकली कि जितनी तुम्हारी वो वैरायटी वेबसाइट पे बढ़ती जाएगी ना, कि तूने बोला कि एक लैंग्वेज मुझे आती है ये शो करना, बट आई फील लाइक अगर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस और लाइक एंडलेस टेक स्टैक के ऊपर तुम शो कर सकते हो, आई गेस वो भी एक काइंड ऑफ. हाँ, आई मीन ओवरऑल कि जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले, इट्स लाइक प्रूफ फॉर इट कि मेरे को ये सब आते हैं, उसका ये प्रूफ है, चेक कर लो अगर ये फंक्शनल है. नाउ यू नो कि भाई मेरे को आती है कुछ. सो दैट इज समथिंग आई वुड ऑलवेज से कि प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है.
एक प्रोजेक्ट तो आपने भी बनाया था अरे हाँ तो उसका तो आगे अच्छा इसकी इंटरव्यू की बात कर रहे हो? दैट लाइब्रेरी वाला। हाँ 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 यस यस वो मेरे लिंक्डइन पे भी आप चेक करो। वो तो बहुत ही बग फ्री वाली प्रोजेक्ट है पर ठीक है सर नो लेट्स नॉट ब्लेम पीपल और टेक कंपनी दे चेहरे था ये नहीं है कि तकलीफ नहीं होती है तो सो बट मैं स्टोरी बताने वाला था तेरे को। हाँ सो मेरे को एक कंपनी का लाइक दे रीच्ड आउट। इट्स बहुत लोगों को यहाँ पता ही नहीं पता। वाई कॉम्बिनेटर करके देयर इज अ थिंग हियर दैट बेसिकली वाई कॉम्बिनेटर इज जो स्टार्टअप्स को फंड करता है। वाई कॉम्बिनेटर जो है वो स्टार्टअप्स को फंड करता है एंड दे गिव लाइक फंडिंग टू स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एकदम, ठीक है। Yeah. तो उनका समर इनटेक होता है, विंटर इनटेक होता है। सो मेरे को S24 लाइक समर 24 से भी कंपनी का मेरे को आया, दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे लाइक कि एक्चुअली दे डिडंट रीच आउट। तो उसमें क्या हुआ कि बंदे ने, तूने सुना होगा, डू यू नो ध्रुव बिंद्रा करके एक बंदा है जो लिंक्डइन पे बहुत फेमस हो रहा है, ही मेड स्टाइल एआई, आई गेस सो इट्स लाइक अ टेंडर फॉर क्लोथ्स। यस यस तो उस बंदे ने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था कि वी आर लुकिंग फॉर लाइक फ्रंट एंड डेवलपर, लाइक यूआई यूएक्स डिजाइनर। बेसिकली दे वर लाइक लुकिंग फॉर समवन, राइट। उसने बोला कि मेरी ईमेल आईडी है, सेंड मी योर लैंडिंग पेज, ठीक है, ओके जो भी यू हैव बिल्ट, राइट। मैंने उसको अपना पोर्टफोलियो भेज दिया, ठीक है। ही वाज लाइक आई लव योर वर्क बट लाइक वी ऑलरेडी हायर्ड समवन, बट ये मेरा एक दोस्त है, इससे बात कर, ही हैज़ अ स्टार्टअप, ही इज़ अ सीईओ एंड ये फाउंडर है, इसको चाहिए कोई इंजीनियर। तो मेरी उस बंदे से बात हुई। नाउ दैट पर्सन, उसकी कंपनी में से दो वो है और उसका को फाउंडर, दैट्स इट। ओके और वो बाकी काम आउटसोर्स करते रहते हैं। उसने मेरे को बोला कि तू मेरे लिए एक, ये हमारी वेबसाइट है ऑलरेडी, इसको रीडिज़ाइन करके दे। आई रीडिज़ाइंड इट, पूरी चीज़, ठीक है। उसने को मैंने डिप्लॉय किया वेबसाइट को, आई रीडिज़ाइंड द होल थिंग। हफ्ते का टाइम था। आई सेंट इट बैक एंड ही इज़ लाइक लुक्स रियली गुड, तो एक मीटिंग करते हैं। नहीं, इट वेंट फर्दर देन दैट। उसने मेरे को बोला कि कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि कॉल पे गया मैं, तो ही इज़ लाइक कि अभी हमारी फंडिंग क्लोज होने वाली है थोड़ा टाइम में, देन वील लाइक यू नो विल थिंक अबाउट इट। एंड देन लाइक वी टॉक्ड एंड दे वर विलिंग टू ऑफर मी कॉन्ट्रैक्ट रोल। तुझे पता नहीं है शायद इसके बारे में। नहीं मेरे को नहीं पता दे वर विलिंग टू ऑफर मी कॉन्ट्रैक्ट रोल। ओके आई वाज लाइक कि उस टाइम पे हमारा ओपीटी का इशू रहता, लाइक सम टेक्निकल इशू, कैन नॉट लाइक, मैं समझाना भी वो थोड़ा वो है। आई वाज लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तो हमारा ये भी नहीं था ओपन, राइट। सो इट वाज लाइक कि मैंने बोला मेरे लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू लाइक get into some contract work, ठीक है, because they were like कि project by project basis. So I obviously understand। उसने मेरे को रीजन भी समझाया कि like as a startup the same thing, they don't want to like, startups जो है they cannot invest इतना ज़्यादा in a person जिसको तुम 150-200 के दे रहे हो। अगर किसी को, if you're paying a software developer, you are investing a lot of money। अगर तुम्हें फंडिंग ही टोटल 500 के मिली है, 500 के फंडिंग देता है, वाई कॉम्बिनेटर गिव्स यू लाइक 500 के, तुम उसमें से 150-200 के अगर एक साल में एक डेवलपर पे लगा दोगे, हाउ आर यू गोना फंक्शन। और उसने फिर ये भी था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क हम इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज यू वांट सी योर कल्चर। अगर हमें वो सही लगेगा वी कैन टर्न यू इनटू फुल टाइम, बट अगर हम पहले ही वी इन्वेस्ट इनटू इट, दैट्स जस्ट गोना बाइट देम आगे जाके। तो दैट कुडंट वर्क आउट फॉर मी, ठीक है। एंड इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग भाई। मतलब मेरे को ये था कि मैंने बहुत मेहनत करी थी उसमें, इट वाज हेवीली फोकस्ड ऑन यूआई यूएक्स, और तभी से मेरा वो स्विच हुआ। एंड आई लाइक, मैं तुझे दिखाऊंगा इसके बाद वो वेबसाइट। एंड नो हार्ड फीलिंग्स ब्रो, लाइक दे वो अपनी जगह सही है, बट मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऑफ द पोर्टफोलियो जो मैंने उसको भेजा। एग्जैक्टली सो अगेन इट्स ओवर एंड आउट बेसिकली क्या होता है कि तुम जब तक अपनी काम को कहीं कोई भी एक तरीके में शोकेस नहीं कर रहे हो, if somebody is looking for full stack development and in our field at least I would like to suggest you something that is, so I would say make sure तुम projects करो, deploy करो and उन links को publicly share करो, लोगों को get users and eventually yeah sometimes you know I have seen people who get hired just because of the project कि किसी को ऐसा project देख के बढ़िया लगा था अंदर, इट गेट्स इट मूविंग, लाइक द प्रोसेस। at least it's like it will let you stand out, I can tell that for sure. चलो देन अगेन बहुत लोगों के प्रोजेक्ट्स नहीं भी होते हैं, दे स्टिल गेट हायर्ड। सो ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, लाइक इट्स जस्ट भाई ऑन दैट नोट देखो
I don't want to go completely deep into the topic of software engineering because there might be a variety of audience. So I like to let's talk a little bit about coping mechanism. So I would like to let's go into the ideology ki this is very demotivating. I know for sure as a matter of fact कि दुनिया में हर बंदे को जब भी तुम you put in effort and you don't get returns, you're of course demotivated. So on that note, I would like to keep the whole soul of this podcast to let people know कि हम क्या कर रहे हैं ताकि हम demotivate नहीं हो रहे हैं. हो तो रहे हैं कभी कभी. को yeah, that's for sure. Like human nature है वो. But I would like to say कि what are you doing? I mean, we are pretty much sharing a lot common stuff in that as well. So let's break it into 3 different parts. एक जो हम कर रहे हैं, that is, we are still staying close to development by projects जो हमने अभी share करी. One more part of the whole podcast is, the whole process is our fitness journey and a bit of sport. And the other part is managing our own emotions and investing in other stuff as well, not just living with this whole cloud ki bhai kuch nahi ho raha, hum to करेंगे. So I would like to keep I like to move a little forward and ask you कि आप I'm sure you're developing every day. You're waking up, you're applying, and you're developing. You're splitting up your day. So what is your typical how was fitness and or a sport particularly is helping you to cope up with the the whole demotivative uh, process of applying for jobs and just sticking to that old screen ki bhai LinkedIn pe apply कर रहा है तू. So how is fitness is helping you and how is any sport like I'm sure to specify कि हम लोग chess खेलते हैं. या और हम खेलने वाले थे. Actually हम खेलने वाले थे but थोड़ी सी ना सेटअप की इशू हो गई थी. या But overall कि हम chess खेलते हैं because यहाँ पे कोई और sport के लिए you need like we are winter चल रहा है बाहर तो हम बाहर कोई outdoor sport तो खेल नहीं सकते. So we play chess a lot together and individually as well. How are these things helping you to cope up? I guess यही चीज़ें हैं जो which are like keeping me at bay and keeping me sane, I would say. मतलब if not this then what? Because my point is कि मेरे लिए knowing myself, it's very important for me to like break the जो monotonous हो जाता है ना every day, especially when it's not giving you any sort of return or pleasure in return. It gets difficult to like keep doing the same thing. So I'm applying पूरे दिन बैठ के on LinkedIn or on like networking or working on a project or like doing any development. एक point के बाद दिमाग फ्राई हो जाता है because एक जनरल बंदा भी जो सुबह 9 से 5 काम कर रहा है वो उसके बाद शायद रिलैक्स करता है और मे बी दे ट्राई टू रिलैक्स डिपेंडिंग ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस. बट देन अगर तुम एक जॉब ढूंढ रहे हो तो वो भी एक फुल टाइम जॉब है इन इटसेल्फ. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अनएम्प्लॉयड हैं. रिलैक्स. तो उसके बाद यू सॉर्ट ऑफ नीड सम लाइक अ ब्रीदर. ठीक है, तो मेरे लिए वो जिम है. जिम फिटनेस भाई इट हैज़ बीन लाइक अ जर्नी. सो आई गेस तुझे पता है हमने स्टार्ट साथ में करी इस साल. वी वर इन कॉलेज और आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ कट. मैं तो भाई बहुत तगड़ा बल्किंग पे हूँ भाई. ही इज बल्किंग और तेरा तो वो बीच बीच में यू कीप बल्किंग एंड कटिंग. I keep switching the cycle. Yeah. So for me, it was more like I started in January this year. Yeah, it has been a journey. I've lost a lot of weight and then I'm still trying to retain my muscle. So चाहे जो भी कर रहे हो तुम, whatever you're doing, whatever you are doing for yourself, तुम्हारे जो भी goals हैं, it keeps you motivated, it keeps you like involved because you go to the gym every day and you see the results. Like मेरे को मैं जिम जाऊँगा, मैं कंसिस्टेंटली जाऊँगा, मैं 1 साल जाऊँगा, मैं चाहे महीने में जा रहा हूँ, मुझे वो महीने में रिजल्ट दिखेगा. ठीक है, तो जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ मुझे वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे एंड आई एम गेटिंग देम जिम जाके, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक
you know, it keeps you sane, it keeps you on the level कि भाई okay, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे efforts are just like going to waste right now. So एक वो reason है, but then also एक results को भी छोड़ दूँ मैं. तो as a process ही gym is so involving कि तुम जब वो weights when you're lifting, you don't think about anything else. वो अच्छी lift होगी और तुम जब तुम्हारा दिमाग वहाँ है and you're just focused on it, I feel like वो एक जो एक सुबह से प्रेशर चल रहा होता है ना, सुबह उठते ही जो प्रेशर स्टार्ट होता है वो बिल्डअप होता रहता है दोपहर तक आते आते इट्स लाइक रिप्लाई नहीं आया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, कहीं से कुछ नहीं आया, वो शाम तक होता है. वो प्रेशर ब्रेक होता है वहां पे जाके, बिकॉज व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द जिम यू आर लाइक ओ मैंने इतनी 1 घंटे से सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में. सो मेरे को इट्स बीन अ रिलीफ भाई. आई लव इट. For me, it has been the discipline factor. तो ही करता है. भाई मेरा तो लास्ट है, मैंने कोई भी किसी एक पॉडकास्ट में तो किया हुआ था कि हाँ वही तो. हाँ ये भाई फुल पावर. तो मेरे लिए तो honestly it has been a big discipline factor कि मैं I know कि सुबह उठूंगा. I have one definitive thing that's gonna happen. Now it became two because of the podcasting. Now I prepare my own outline scripts, किसके साथ करनी है, कब करना है, ये सब चीज़ें काम होता है. बट मेरे को ना ये बहुत बेटर लगता है कि मैं सुबह उठता हूँ. The first thing that I know is I have two definitive things that I have to be doing. One is I'll be going to work out. Two, I'll be working on this part, which will give me returns. So now when you said that part कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो I know कि भाई एक महीने में 1.5 महीने में रिजल्ट आता है. So on this, I have already told you this theory of symmetric and asymmetric returns. तो for public, एक सिमेट्रिक रिटर्न ये होती है कि अब जब तुम अगर एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, तुम्हें एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट लाइक रिजल्ट वापस मिलती है. लाइक मैं अगर 1 महीना प्रॉपर जिम करके डाइट करता हूँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द गोल एंड माई वर्क आई विल गेट द रिटर्न ऑन माई बॉडी दैट इज विजिबल. एंड असिमेट्रिक रिटर्न जो होती है कि यू हैव नो क्लू. इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, गोइंग ऑन अ डेट. जैसे कि अगर पॉडकास्टिंग भी हो गया, एनीथिंग. दीज आर असिमेट्रिक रिटर्न्स. मतलब तुम अगर एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट डालते हो तो यू नेवर नो आउटकम क्या हो सकता है. हो सकता है कि अगर मान ले somebody might read a book and actually might change their whole life. Somebody might like मैंने podcasting start किया, tomorrow this might be making the bread in my home. You never know. So it's like asymmetric returns here. So with too many asymmetric returns in a day, that one symmetric return thing that we are doing, which is fitness, will keep the day going. A little motivating भी होता है, a little disciplinary factor में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ती है कि भाई because हम वहाँ like 1-2 घंटे के लिए अगर एक slot मेरी booked है, so I'll plan my day around it. कि भाई यहाँ मेरे को यहाँ जानी है, तो बाकी मेरे भाई मैं अब अप्लाई करूँगा, अब मैं पॉडकास्ट के बारे में सोचूंगा, अब मैं डेवलप करूँगा, मेरे को जिम जानी है. समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. एग्जैक्टली कि दिन में आई हैव समथिंग टू डू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज फॉर श्योर. एक वो बहुत. एंड द अदर पार्ट दैट इज दैट आई मीन यू आर अ लिटिल ऑफ ऑन दैट फील्ड, बट मैं हर दिन करता हूँ ये. आई वेक अप एंड while I am डिस क्यों कर रहा है भाई? अरे नहीं यार, I wake up and while I am having my breakfast and stuff in the first hour in the morning and the last hour before I sleep, I play chess. I play chess every day भाई. कि मेरे को ना सुबह उठता हूँ ना मैं, एक्चुअली ये एक ना बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ है कि every game I can see myself getting better. And on that note, Gukesh has won the world championship and congratulations from my side as well. And तो उसके बाद like when he knows like before the last move, before the opponent gives up, so he's like he just knows, he's smiling or yeah, crazy, that was crazy, yeah, he crazy. watched the match whole and Yeah. congrats to him, yeah, big kudos. And take any sport or any field where you are taking forward our country's name, complete respect for that. So You saw that like उसने when he says like he's 17 years old वो video के अंदर he's like I want to be the youngest, yeah, not 17, मतलब, that's from 2017 the video yes. कि I want to be the youngest champion. Yeah. So I mean I would say यार chess खेलना जो मेरे लिए benefit कर रही है, it has been a big deal for me कि मेरे को बहुत मजा आता है. Lately I do play it in the morning
and I play it in the night. पूरा दिन मैं जब इसको फोन करूं इज लाइक भाई चेस चल रहा है, ये चल रहा है, मूव्स नोट करना शुरू कर दिया इसने, वो प्रॉपर ऐसा नोटपैड डायरी में। I have a book where I write down my moves in a game, and no, I use them for the next game. कि अगर कोई मैच हो रही है मेरे साथ ही, so I try to like track down the opponent. मैं बताता हूँ चेस स्टार्ट कैसे हुआ। चेस स्टार्ट हुआ कुछ सितंबर में बोलूंगा मैं, आई थिंक सितंबर में मैंने वापस लाइक आई री इंट्रोड्यूस्ड इट कि हम साथ में खेल रहे थे, तो मैंने एक दिन बोला कि भाई मैंने ना चेस खेलना स्टार्ट किया। आई डोंट इवन नो मैंने स्टार्ट क्यों किया, आउट ऑफ नोवेयर चेस खेलना शुरू कर दिया। तेरा कोई क्यों करा था मैंने? there was a year like ओह आई नो, लाइक मम्मी पापा आए हुए थे यहाँ पे और सब लोग साथ में थे, हम चेस खेल रहे थे, एंड आई रियलाइज कि यार मैं चेस तो सही खेल लेता हूँ, ठीक है, मुझे मजा आता है खेलने में और इट्स फन, ठीक है। तो कैरम नहीं आता मुझे खेलना ना। अच्छा, तो मैं कैरम में हारता था और चेस में जीता था, तो मुझे मन करता था वही भाई सिमेट्रिक रिटर्न एसिमेट्रिक। तो ना वहाँ से शुरू हुआ, मैंने इसको बोला कि भाई चेस खेलते हैं, इसने ऐप डाउनलोड करी वापस, इसने खेलना शुरू किया। मैंने 1 महीना खेला, फिर मैंने बोला भाई मेरा हो गया, डन, यू नो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा था भाई, वो कि पूरे दिन चेस चेस चेस। इसने ये पीछे ही पड़ गया उस चीज़ के, ये पागल हो गया है। in champion league in chess.com, which is like top almost. इसके बाद legend होता है बस. I am now on the champion league with a 70-day highest streak I've ever played with. 70 days continuous. 2 महीने से ऊपर हो गया भाई, that's 70 days crazy. continuous. Every day I've played chess at least for one game. Lately I've been a bit off because I've been traveling for podcasting. ऑब्सेसिव हो जाता है यार। मैं सोता था ना, तो सोते सोते दिमाग में ना वो मूव्स चलती रहती थी पूरे टाइम की, ओ उसने ये अगर रैंडम लाइक इट्स नॉट इवन अबाउट अ गेम, बट एक मूव की अगर एक बोर्ड का लेआउट अगर सेटअप ये मूव है तो मैं क्या चलूंगा इस पर, वो आई डोंट नो, बीमारी हो गई थी भाई मेरे को। It happens. They say this कि किसी ने बोला था, I don't know who said it, but they say, you know, doing chess is no better than drugs because it's just not you are not abusing a substance. That doesn't mean you're not getting obsessed with something. बट हाँ दैट्स, हाँ ये तू करता है, दैट्स नाइस। I feel यार ये दोनों तो चीजें कर रहे हैं ना हम लोग. मतलब I mean he also plays chess sometimes with me. वीडियो गेम्स मे बी लाइक क्या दे डू हेल्प, क्योंकि तुम थोड़ा खेलते हो। वीडियो गेम्स तो वैसे भी कहते हैं दैट बूस्ट योर लाइक सेरोटोनिन। हाँ कहीं तो जीत रहे हैं भाई, सही बात है। बट देन यार एक चीज है कि चेस में ना आई ऑलवेज फाइंड अ न्यू लाइफ लेसन इन चेस ऑफन टाइम्स. हाँ कसम से. लाइक व्हेनेवर आई प्ले द गेम एंड आई विन विद अ मूव राइट, लाइक जहाँ पे मैं हार रहा हूँ एक्चुअली, एंड आई होल्ड माय पोजीशन विद पेशेंस कि भाई लेट्स सी एक मूव कहीं ना कहीं पे तो मिलेगी, एक मूव कहीं, एंड आई विन द गेम. Oftentimes I go back and I've started doing this also. Like that's where the podcasting ideas come. कि I started to journal things. तो जब मैं सितंबर इश अक्टूबर में आई स्टार्ट टू राइट कि दिन के एंड में कुछ टाइम कि आज इज देयर एनी टेक अवे फॉर मी. तो मैं वैसे जब वो लिख रहा था ना एक दिन कंटिन्यूअसली फॉर अ वीक आई हैव बीन हैविंग कि यार ये पॉडकास्ट करना चाहिए मुझे, मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे पॉडकास्ट करना चाहिए. एक वीक के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया. तो बेसिकली आई हैव नोटिस्ड वन थिंग व्हाइल आई वाज प्लेइंग चेस, ऑफन टाइम्स पेशेंस हेल्प्स. पहली बात. दूसरी बात पता है, ओवरऑल द गेम इट्स अ वेरी फेमस थिंग. जब तक किंग नहीं गिरता तब तक गेम ऑन है. तब तक गेम ऑन है. ये ड्रॉ भी हो सकती है एटलीस्ट. प्रोफेशनल इतने गेम होते हैं, बट देन इट्स ऑफन टाइम्स एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ होल थिंग, जब तक द किंग फॉल्स तब तक गेम ऑन है. मतलब तुम ड्रॉ तो कर सकते हो, यू आर नॉट लूजिंग. सो द पॉइंट इज अल्टीमेटली आई वुड से वन थिंग कि उस गेम से ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ भी चल रहा हो ना लाइफ में, तुम खड़े हो ना, हो सकता है कि तुम इसको कुछ ना कहीं खींचोगे. यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट लूजिंग. तो लिंक्डइन का अकाउंट डिलीट नहीं करना। नहीं करना होता भाई. अच्छा ओके। आई मीन बीच में लगा था यार एक मैं तो वीएस कोड डिलीट करने वाला था एक हाँ दिन। भाई. मैंने इसको फोन किया, मैं वीएस कोड डिलीट कर रहा हूँ भाई मैं। बट यू नो दैट इज एंड द अदर पार्ट इज एज फिटनेस. एक और भी चीज कि वो भी ना लाइक लेटली मुझे ना अभी लग रहा है कि डोंट यू थिंक इन सम एक्सटेंट बिकॉज वी डोंट हैव यू नो इनफ like effort to put in something that we used to do while we were students, don't you think we are getting obsessed with everything we are doing apart from that? कि पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ मैं ये चीज़ सोची थी बीच में, पता है कि लाइक जॉब तो देखो सभी कहते हैं मिलेगी 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 ही, ऑब्वियसली यू विल गेट इट। मैं ये सोचता हूँ जब तक मिलेगी ना मैं रिप्ड होके निकलूंगा भाई, आई विल बी रिप्ड बाय देन। बट उसका सारा क्रेडिट इस पे जाता है कि
अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम बहुत फोकस लगा पा रहे हैं, हमारे पास टाइम ज़्यादा है, हम उस चीज़ के बारे में उसको ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। हम दिन में डिस्कशन करते हैं कि भाई डाइट के ऊपर डिस्कशन, हम डाइट अच्छे से ले पाते हैं, जो कि एक कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम करता है, तुम काम करते हो, तो शायद वो थोड़ा मुश्किल होता है भाई कि एक डाइट मेंटेन करना एंड एवरीथिंग। सो I guess this guy's coming interesting. आजा ले आओ। Come here, Leo. दिख जा, दिख जा. That's my pet. That's my pet. I guess वो नहीं आएगा, अंदर तक तो नहीं आएगा. हाँ बोल. सो वो एक अपसाइड कह सकते हो, सिल्वर लाइनिंग कह सकते हो। Say the same thing for me as well कि एक चीज़ तो है कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ अभी as a part that I'm very interested. It used to be a long time hobby. So अब lately क्या होता है कि I am very interested that कि every day I'm like at some part of the day I sit down, I write, I think of new podcasts, I reach out to people, and I've been few interesting podcasts are lined up ready. मैं सही में कह रहा हूँ, मैं तेरे को बताया हुआ था 2-3 चीज़ें कि हाँ बोल नहीं सकते, but a couple of like few of the podcasts are crazy that are coming up soon. So यार एक I really want to say we got a job before GTA 6. Yeah, well, fully but we can't say like we got ripped before GTA 6. अरे यार Before we got a job. movie. So, or anything in general. Like अगर तू अपने पॉडकास्ट की बात करेगा तो यही सोचेगा ना अपने आप को कि भाई कल को तू सोचेगा कि थोड़ी देर लगी, थोड़ी वाट लगी मेरी, कि भाई पैसा और ये सब, पर तुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं अच्छा है यार कि मैंने एक हॉबी पकड़ ली, मैंने एक पैशन पकड़ लिया, और मैं Yes. तो मेरे को एक वो अपसाइड मिल गई उसकी। तो आई गेस इन अ वे दैट्स बढ़िया चीज़ है यार। On that note, so I would like to just drive it towards the end of the podcast. We have had a great discussion. From talking that why is this influx happening, or why is people are still looking for a job, to how to be, what are we doing to keep us engaging in a given day and not being like just be demotivated. So on that note, let's finish on suggesting few tips that how would you suggest that people be motivated despite have not having returns in job search or anything that they're going through. So what would you say? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सब्जेक्टिव है ये चीज़ें ना, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। हमने अभी बात करी जिम के बारे में, तेरे लिए चेस भी है, पॉडकास्ट भी है, राइट? कुड बी एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हें सेन रखे, योर सेरेनिटी एक्टिविटी, कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है? बिकॉज मैं आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको प्रॉब्ली अगर एंग्जाइटी या अगर उनको इफ दे फील ट्रबल्ड बाय एनीथिंग और ओवरवेल्म, उनको इट्स बेटर फॉर देम टू नॉट गो टू द जिम। It depends on the person. So it's really about finding what brings you peace and brings you that calm. So वो अपना find करना बहुत ज़रूरी है, especially in times like these. But I would say staying grounded and staying in the present, not spiraling. I know it's tough, and I really know, like I'm going through that. We're going through that right now. So it's really tough sometimes to stay in the reality or see things for what they are. You make things so much bigger in your head. It's difficult to get out of your head. So I would say stay grounded. Try to get out of your head once in a while. Don't take yourself or the situation too seriously. It's probably the best thing that you will do, because जब तुम इससे बाहर निकलोगे, you want to come out a better person and not look back and see it as survival. It's more about living. मुझे ऐसा लगता है। मुझे lately realize हुआ, like 6 महीने हुए, right? उसमें there have been phases. पहले first 2 months are very like hopeful and exciting and new कि okay, हम try कर रहे हैं, हम LinkedIn, ये वो everything. Then it goes to कि like okay, you setback हुआ, depressed, थोड़ा सा you get depressed, you get like demotivated कि reply नहीं आ रहे. Then there's like वापस so there's been like waves, and I feel like not too like long ago there was a phase जहाँ पे मेरे को I was like really really depressed about it. I was like really
भाई मैं हो गया था बीच में, मेरा दिमाग अभी एक भी फेज था ना, हमने ब्रेक तक लिया था सबसे। हाँ कि सब छोड़ दिया, अप्लाई करना सब छोड़ दिया कि लाइक लेट इट गो. मैं भी थोड़ी देर ब्रेक लिया, डेवलपमेंट में भी ब्रेक लिया। इट वाज दैट ओनली, बस हो गया, लाइक जस्ट जस्ट एक्चुअली नहीं, दैट वाज आफ्टर. इट वाज इंडिफरेंस कि भाई अब ना, जब वो इतना परेशानी हुई ना एंड यू रियलाइज कि यार इट शुडंट बी दिस डिफिकल्ट, कि मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग सो मच, और हमारी पूरी लाइफ अभी इस चीज़ के बारे में है एंड देयर इज नथिंग एल्स दैट वी आर थिंकिंग अबाउट और टॉकिंग अबाउट और डूइंग. तो उसके बाद हमें हिट किया कि भाई ये सब छोड़ो एंड लेट्स जस्ट फोकस ऑन लाइक स्टेइंग सेन. लाइक ये ना हो कि कल को जॉब मिल जाए और हम पागल होके निकले ऐसा. लाइक आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन से दैट वर्ड, थोड़ा ना हो जाएगा, इट्स फाइन। लाइक ये ना हो कल को कि यार तुम ऐसे निकलो और यू फील लाइक कि यार आई वन बट एट लाइक व्हाट कॉस्ट. दैट इज ठीक है ना. सो ये मेरी एडवाइस है, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ और हमेशा लाइक कीप अ रियलाइजेशन. आई थिंक दैट्स व्हाट्स हेल्पिंग मी as I navigate this, and I think it will help you too. I'll tell you guys something that I really follow. एंड एक बात उससे पहले बताऊं, हम दोनों वो वाले सीट पे तो नहीं बैठे हैं जिस पे हम आपको इतनी एक सजेशन दे पाए, बट ये हमारी ओपिनियन के तौर पे अगर आपको काम आ रही है तो एब्सोल्युटली वी आर रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइस इन दैट वे. सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा यार, यू नो लाइफ में पता नहीं कब कौन सी फेज चलेगी. वी डोंट नो, वी हैव नो क्लू. एक जस्ट डू समथिंग that will let you sleep like a baby in the night is what I follow. हाँ, जॉब सर्च करनी पड़ेगी. हाँ, डेवलपमेंट ऑफ कोर्स अपनी, आई लव इट, बट जॉब सर्च करनी पड़ेगी. आई हैव टू अप्लाई फॉर जॉब्स, बट आई एम नॉट गोना बी डूइंग दैट एज अ सुबह से लेके शाम तक सब 12 घंटे ये काम नहीं करना चाहता हूँ मैं. एंड बिकॉज दैट विल नॉट लेट मी बी पीसफुल. And also not as productive. यस. सो मैं ऐसा डिवाइड करता हूँ अपने दिन को कि मैं सुबह एंड इन द मॉर्निंग एंड इन लाइक इवनिंग काइंड ऑफ place, and somewhere in between I apply for jobs and I do development in first half of the day, and I write my stuff in the later half of the day, and then I do gym in the later half of the day. So ये मेरा एक रूटीन बन चुका है जिसको मैं हर दिन चलाता हूँ, जिससे मैं प्रोडक्टिव बनता हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद इट. फर्स्ट थिंग. सेकंड ऑफ ऑल, यार एक चीज तुम सोच मान के चलो दुनिया में, दिस इज लाइक द शो मस्ट गो ऑन. यू कांट बी स्टेइंग देयर. यू नो नेचर से ना, इन दिस प्रोसेस आई हैव लर्न वन थिंग इज ऑब्जर्विंग एवरी सम लेसन फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड मी. तुम नेचर को देखो, यू सी एन ओशन और a sea. Some part of the ocean is having a tornado right now while you are enjoying the beauty of the waves sitting at the beach. Simple as that. Just because कहीं पे tornado हो रहा है, वो wave रुकती नहीं है. The ocean does its work. It's simple as that. हाँ, you are not okay mentally. You might be, you might be stressed, anxious. You might be deprived कि यार कुछ भी नहीं हो रहा मेरा. Yet तुम्हें हर दिन सुबह उठना पड़ेगा. You have to put in the work. वरना nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. So if you ask me my opinion, simple as that. कि first of all सिचुएशन को एक्सेप्ट करो. उसके बाद मेक श्योर यू आर डूइंग समथिंग इन योर डे दैट एक्चुअली कीप्स यू मोटिवेटेड. एंड अबव ऑल, यार तुम अगर मुझे रॉली पूछोगे ना कि भाई देख मुझे समझ नहीं आ रहा, तो होता है ना सरफेस लेवल पे बात कर रहा है कि भाई फॉलो योर पैशन, तो ये कर वो कर, पर मुझे समझ. पहली बात, अबव एवरीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर बॉडी. बॉडी जब तगड़ी होती है ना, तुम्हारा ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल पे आ जाती है. पहली बात. दूसरी बात, कंट्रोल योर थॉट्स. रीड अ बुक, राइट समथिंग. कुछ ना कुछ तुम्हारे थॉट्स को ना कहीं पे रख दो. बुक पे रखो, पढ़ो कोई बुक, या कोई बुक पे तुम लिखना स्टार्ट कर दो. कुछ भी लिखो जो भी दिमाग में चल रहा है. दैट विल मेक श्योर योर थॉट्स आर अलाइंड. एंड इन दोनों चीज़ों के बाद तुम अपनी दिन को प्रॉपरली प्लान करो, और तुमको ना लिटरली तुम्हारे सामने सुबह उठते दिखना चाहिए कि भाई 8 बजे से अगर तुम उठ रहे हो, सोने के 10 बजे तक तुम क्या करने वाले हो. जैसे ये टाइम्स हम फॉलो नहीं करते. 8 से 10 हमारा पॉइंट इज व्हेन आई वेक अप टू माय स्लीप, व्हाट एम आई डूइंग. एक क्लियर प्लान रखो.
दिस विल फॉर श्योर कीप यू गोइंग। ये बहुत तुम्हें मोटिवेटेड रखेगी ही रखेगी। ऑन दैट आई विल जस्ट ऐड वन थिंग, भाई टाइम सबका खराब होता है यार। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले भी गए, टाइम सबका आता है। हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। आज अगर तुम्हारे पास जॉब है तब भी हम्बल रहो, आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है तब भी हम्बल। गल्ला सब सच भी रे जो जो तू कहती है, तू तो बस कितनी मेरे नाल भी थी। वो तो भाई क्या ही बोलूं, दैट इज लाइक अ वेरी बिग मोटिवेटिंग सॉन्ग गेम बाय सिद्धू मूसेवाला। एंड स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। कीप लिसनिंग टू करण औजला। क्योंकि क्योंकि बेसिकली भाई क्या होता है कि जब तुम्हारे दिमाग में एक वो प्रीडिफाइंड आइडियोलॉजी होती है ना कि भाई मेरे पास तो इतने स्किल्स है, नहीं है भाई शायद। कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग। It's also what you want to say कि like just stay true to yourself. Don't मतलब खो मत जाओ यार इस चीज में। बहुत इजी है इसमें खोना, मतलब बहुत बहुत इजी है इसमें खोना। कभी तुम अपने आप अंडरमाइन भी मत करो, ओवरमाइन भी मत। मैंने तेरे को कितने दिन फोन किया और तू ऐसा कि भाई बेड से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, और आई हैव बीन इन द सेम पोजीशन कि भाई मन ही नहीं कर रहा यार कि क्यों करें, बट देयर विल बी डेज लाइक दैट कॉस, बट लाइक वैसे भी थे, और हम वैसे भी थे कि सुबह उठते ही फोन लगाया, भाई देख आज ना ये डेवलप कर रहा है, लाइक ये फीचर डालना है, ये को क्या लगता है ये फीचर सही है। हाँ इट्स लाइक यू विल हैव बोथ द डेज। बोथ द डेज। पहली तुम हम्बल रहना सीखो, ये एक जर्नी है तुम्हारे लिए, अच्छी बात है। हम्बल रहना सीखो, कुछ आगे बहुत बड़ा मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आंख बंद करोगे तब भी दिखोगे, कान बंद करोगे तब भी सुनाई दोगे, सिंपल एज दैट। आज जो भी चल रहा है यार कीप इट, रिश्तेदार पूछेंगे ऑफ कोर्स, आजू बाजू वाले पूछेंगे कि यार क्या चल रहा है, जॉब सर्च का क्या चल रहा है, तेरा क्या है, हो गया, कब होने वाला है, अरे यार अभी भी नहीं हुआ। दिस आर आई भाई ऑनेस्टली मेरे को एक चीज ना लेटली रियलाइज हुई है, अब आई डोंट नो इफ यू आर फीलिंग द सेम वे। एट दिस पॉइंट मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो तो पहले दिन से था हमारा। नहीं पहले था भाई, इट वाज डेफिनेटली द केस ऑफ प्रेशर बिल्डअप एंड एवरीथिंग। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने लिए करना है। अब तो यार देखो मैं ऑनेस्टली मुझे लाइक यू रियलाइज आफ्टर अ पॉइंट कि भाई ये ना कि आई गेस बहुत लोग रिलेट भी करेंगे इन चीज़ों से कि लाइक पहले पहले होता है यार कि ये है वो है, एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है यार सोचेंगे भी तो सोच लो मैं क्या करूं, मेरा तुम्हारा क्या जा रहा है, और मैं तुम्हारा कुछ जा भी रहा है, तुम्हारे दिमाग में मेरी इमेज गिर रही है, कुछ हो रही है, आई रियली डोंट केयर, लाइक आई पॉइंट इज वांट टू डू बेटर, लाइक गुड बाय माई सेल्फ, और पॉइंट करूंगा। जब तक तुम्हें क्लैरिटी होती है ना कि भाई मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग मैक्स एफर्ट, उसके बाद तुम कोई भी दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले ना, यू विल ऑलवेज बी लाइक यार ठीक है भाई तेरे को लग रहा है ना, चलो। वो ठीक है यार, आई गेस इन अ वे इट्स आल्सो एक पार्ट ऑफ द सिल्वर लाइन। ऑन दैट नोट भाई, कोई भी हो, कहीं से भी हो, तुम आज रिसेंटली ग्रेजुएट हो चुके हो, या तुमको ले ऑफ किया गया है, या तुम काफ़ी टाइम से कुछ जॉब नया ढूंढने की कोशिश पे हो, या वॉट एवर फेज ऑफ लाइफ इन यू आर बीइंग डिमोटिवेटेड, वन थिंग इज सबका अपना टाइम, सबका अपना दौर आता है भाई। वेट करो, बी पेशेंट, तब तक अपनी अपनी फील्ड में अपस्किल करते रहना, नया सीखते रहना, कुछ नई हॉबीज पकड़ते रहना, क्योंकि आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। डोंट ऑलवेज बी जस्ट वन थिंग पर्सन कि बस मुझे यही आती है, सब ट्राई करो, जो भी तुम्हें इंटरेस्टेड हो सब चीज़ करो, बी द पर्सन दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी, कीप अपस्किलिंग, and we all are on the same boat, and यार be ready to have a firm handshake with each other at some point of time, जिसमें हम लोग सब we have made it. Until then, all the best यार, keep things going on, and that's where I end the podcast. Take care everybody, and that's Take Podcast for you. By the way यार, like share subscribe बोल दे तो हमारे लिए कुछ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सब। ये वाले एपिसोड को थोड़ा ज़्यादा प्यार देना और हमारे पोर्टफोलियोज चेकआउट करना, एंड इफ़ तुम रेफरल दे सकते हो क्या हायर कर रहे हो या हायर कर रहे हो तो या तुम चाहे लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, चलेगा भाई, एक दो कोई नहीं भाई, रेफरल दे देना भाई इफ दैट्स पॉसिबल। चलो भाई, चल भाई। let's go. All right guys, thank you so much for watching.